Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, all right. So ready बेटा, चले index error पे? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, okay. अब बेटा this is a little tricky concept index error को calculate करना. So be attentive. And next 5-10 minutes we'll be able to understand how the index error is calculated. So pay attention. Huh? Let's now move on to the second part of the question. Now, in some of these questions, they may ask you to find the index error of the sextant. Now we know that this cocked hat is formed because of a error in the observation. We have a similar error in all the three observations. If there was no error, all the three position lines would have intersected at the fix of the ship. But they are not intersecting at a single point and they are instead making a triangle. And the reason for that triangle as there is some error. Now, if this is caused by an index error and we are required to find the index error of the sextant, how can we obtain it from the cocked hat? Let's see. Now for finding the index error, we have to select any one of the position lines. Any one of the PL can be picked up. So let's, for our example sake, we pick up the PL number 1, the red color PL. You can pick up the blue PL, or if you want, you can pick up the green PL. All the three position lines are going to give you the same answer. So for our example sake, we have picked up the red color position line. Now we have to draw a line passing from the fix which we have obtained in such a way that this line is parallel to our selected PL. So we have to draw a line passing from the fix parallel to the red PL. So we can align our sliding ruler or parallel ruler to the red PL, shift it to the fix and then draw a line parallel to it. You can now see the maroon color PL coming up in the diagram. This is passing from the fix and this is parallel to our initial PL selected, which is the red PL, PL number 1. Now if the position line did not have any error at all, if this red color position line obtained from star 1 did not have any error, it would have exactly passed from the fix and it would be the maroon color PL then. So this maroon color PL is basically the position line without the index error, and the red color PL, which was used in making of the triangle, making of the cocked hat, is the position line with error. So the red position line is the PL with error and the maroon color position line is the PL without error, or it is the accurate PL. Now the distance between these two position lines, the perpendicular distance between these two position lines gives us the index error of the sextant. Let me show you in the diagram. You see this maroon color arrow coming up. This shows the perpendicular distance between these two position lines. The red color PL having the error and the maroon color PL without any error, the accurate PL. This index is what is the index error of the sextant. Now, as I told you earlier, this index error can be obtained from any of the three position lines. You may use the blue color PL and follow the same procedure, or you may use the green color PL and follow the same procedure. In all the three cases, you will be getting the same index error. The reason for that is that this point, the fix, is the bisector point or is the intersection point of all the three angle bisectors. And this intersection point of the three angle bisectors of the triangle, it has a geometrical property that it is equidistant from all the three position lines. So whether you pick up the red PL or the blue PL or the green PL, in all the three cases, you will obtain the same
index error. Now this distance between the two PLs gives us the index error. You can measure this distance as per your scale, and the index error magnitude is known. Sir, Any on doubts or in the? अभी बताता हूँ बेटा. on off. On off, sir. How to find on off? Next slide बेटा, coming. बिल्कुल नहीं पड़ेगा बेटा, तुम ट्राई आउट कर लेना. ये तीनों पीएल से सेम डिस्टेंस पे होगा तब भी. Okay, let's proceed ahead. Now we have obtained the magnitude of the index error which was present in the sextant. The second thing now which needs to be calculated or found out is what is the sign of this index error. We are aware that the index error of a sextant can be on the arc or it can be off the arc. So how do we find out whether it was on or off in this particular case? Now for finding out the sign of the index error, we need to check carefully in the diagram that when we are moving from the PL with error, in our case the red color PL making the triangle is the PL with error. Now from this PL, when you are moving towards the accurate PL or the PL without error, in our case the maroon color PL is the accurate PL. So when you are moving from the error PL to the accurate PL, are you moving towards the body or away from the body? Which body we are talking of here? We are talking of the celestial body which was used to obtain the position line. In our case, the red color PL was obtained using star number 1, the red color star. So we need to now see when we move from the red PL to the maroon PL, are we going away from star 1 or are we going towards star 1? Now you can clearly see that if we move from red PL to maroon PL, wrong PL to accurate PL, we need to move away from the star. So this is the factor which decides whether the index error will be on the arc or off the arc. Now we have seen from our plot that when we are moving from PL with error to the accurate PL, we have to move away from the body, away from the celestial body, in our case the star 1. Now when we are moving away from the celestial body, that means the observer's position should be farther away from the celestial body. The observer's position on the celestial sphere is represented by the zenith of the observer. So this tells us that the zenith of the observer should be farther away from the celestial body. Now this distance between the zenith and the celestial body is given by true zenith distance, in short TZD. So this now tells us if you are moving from PL with error to the accurate PL, the TZD of this particular body should increase. If the TZD increases, your error PL will move to the accurate PL. Now we know that the true zenith distance of a body is equal to 90 minus true altitude. So if TZD has to increase, the true altitude would decrease. The true altitude should be lesser. If the true altitude decreases, 90 minus true altitude would be a greater value, leading to increase in the TZD. So the same thing is mentioned here. We are moving away from the body. The zenith is away from the body. So the true zenith distance should increase. True zenith distance is equal to 90 minus true altitude. So for true zenith distance to increase, the true altitude of the body should be lesser or it should decrease. Now the true altitude can only decrease
if we apply a correction to the true altitude, which is negative correction. So if there is a negative correction, the true altitude is going to decrease and the TZD would increase. Now when we apply the index error, we know whenever the index error is on the arc, we put it off or we subtract it. So if we want to have a negative correction, the index error has to be on the arc. So let us now test our logic going backwards. In this particular case, if the index error is on the arc, then the value of the index error would be subtracted. We will apply it as a negative correction because if the index error is on, it is put off. So if the index error is on the arc, we will have a negative correction to the true altitude. A negative correction to the true altitude would mean that the true altitude value will decrease. If the value of true altitude decreases, that means the value of true zenith distance will increase. And if the true zenith distance increases, the red color PL is going to move away from the star, coming to the maroon color PL. So the PL would become accurate. So our correction in this case, index error correction, is on the arc. So if you are moving away from the body, the index error should be on the arc. Excuse me, sir. Bolo beta. Sir, it means the accurate PL, it will away from the body on the arc, and it will off the arc, correct? That's right, beta. If you are moving away from the body, it is on the arc. If you are moving towards the body, it is off the arc. And sir, we have to measure the distance between the original PL, and just we will write whatever minutes it will come on the arc or off the arc. That's it. That's right. Thank you, sir. सर एक स्लाइड पीछे चले जाएंगे प्लीज, सर स्क्रीनशॉट लेना था. Okay, beta. This is the one. Sir, to get the index error, sir, we have to draw the accurate PL in the plotting sheet, sir. We have to show it. Beta, if you can measure it without showing also, it's fine. But I would recommend you should show, then there is no confusion, no doubt. Oh, okay, sir. Thank you, sir. सर आपने बताया कि जो पीएल विद एरर है, अगर हम एक्यूरेट पीएल की तरफ जाएंगे तो हमारा टी इंक्रीज होगा और ट्रू अल्टीट्यूड डिक्रीज करेगा, राइट सर? इस केस में ऐसा हो रहा है बेटा. सर आपने बताया ना ये पीएल विद एरर में अगर हम एक्यूरेट पीएल की तरफ आएंगे तो हमारा टीजेडी इंक्रीज करेगा. That's right. TZD is increasing. Sir, true altitude will decrease. Yes, that's right. Just I want to know about the accurate PL. It is the reference point. Accurate PL is the one which is passing from the fixed beta. Okay, sir. Okay. Okay. So always, if the fix is inside the triangle, it will be on the arc, right, sir? No, it does not mean that बेटा. ये जो triangle है, ये situation ऐसी हो सकती है कि it may happen otherwise also. You just stick with the basics. Sir, if the fix is inside the triangle, then we will be shifting the PL towards the fix. That means we will be moving towards right, sir. बेटा अगर यही intercept ना towards की जगह पे away हो जाए, तो ये उल्टा हो जाएगा. Understood. Okay, the star will go in reciprocal direction and you will be moving towards the star. Okay, so you make the diagram and then look for this as जो steps मैंने बताए हैं, look for these steps, they will take you to the right answer. Okay. सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओगे एक बार? बेटा नंबर 21. यस सर.
नो 20 सॉरी वही वाला सर 20 ना, this is the last one which I showed you. yes sir this one. Okay sir, done. Sir, just had it out, sir. PL with error means the observer is lying on this PL. PL with Right, sir. error means the PL which was Yes. used in making the cocked hat, the triangle. Sir, just mean PL with error means observer will lie in this PL. नहीं Yes. बेटा, जो PL with error है ऑब्जर्वर वहां पर नहीं है, ऑब्जर्वर तो एक्यूरेट PL पर है. Okay. ओके, Oh, जो PL with error थी वो तो गलत PL थी बेटा, इसीलिए cocked hat बना रही थी. ऑब्जर्वर जो है वो एक्यूरेट PL पे, ऑब्जर्वर इज एट द फिक्स. okay, sir. ओके, ऑल राइट. सो ये बेटा cocked hat हो गया, एंड हाउ टू फाइंड द इंडेक्स एरर. सो आई होप ऑल डाउट सॉर्टेड आउट नाउ. Yes sir, clear. वेरी गुड. अब ये बेटा जो टॉपिक है, दिस इज नॉट सुटेबली कवर्ड एनीवेयर. सो बुक्स में आपको इसके थोड़े कंफ्यूजिंग मेथड्स मिलेंगे. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन यू हैव अंडरस्टूड ए great concept. This will help you in orals also. Okay. In Rewari, it's problem negotiation. हाँ, वहाँ पे दे रखा है बेटा, 1 page is given, but वहाँ पे भी index error is not very clearly mentioned. So 2020 onwards out of syllabus है sir index error. right बेटा, ठीक है. ओके, ग्रेट. अब बेटा आपके असाइनमेंट में और भी कोई डाउट्स हैं आफ्टर दिस? क्वेश्चन नंबर 13. नंबर 13. ओके, लेट्स गो टू द असाइनमेंट. ओके, ऑल राइट बेटा. नंबर 13 में क्या डाउट आ रहा है? सर इसमें 2 ऑब्जर्वेशन है, एक वीनस का और एक मून का. तो हमने मून का ही लेके सब उसको कैलकुलेट किया है, एक ही रीजन है. और इसमें सर जो टीजेडी जैसे लॉन्ग बाई क्रोन है, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है ईस्ट ऑफ द मेरिडियन. तो मुझे ये समझ नहीं आया कि टीजेडी फिर एमजेडी होना चाहिए ना, इसमें ईस्ट ऑफ मेरिडियन लिखा हुआ है. तो ओके, अब सबसे पहले तो ईस्ट ऑफ द मेरिडियन का क्या मतलब है? ये इसकी रैशनल हॉराइजन डायग्राम है. अगर बॉडी आपके मेरिडियन, आपका मेरिडियन है PZQS, इससे राइट साइड की डायरेक्शन में है, दिस इज द ईस्टर्ली डायरेक्शन. इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट ऑफ द मेरिडियन. बॉडी कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर. इट इज कॉल्ड एज ईस्ट ऑफ द मेरिडियन. ओके, अब ईस्ट ऑफ द मेरिडियन पे TZD MZD क्यों होना चाहिए बेटा? MZD तो हमारे पास पे होता है. MZD तो हमारे पास पे होता है ना. वीनस इज नॉट एट मरपास, सो दिस शुड बी TZD ओनली. वो अलग बात है कि हमें TZD चाहिए नहीं यहाँ पे. दिस इज एक्स्ट्रा स्टेप विच इज शोन. वी डोंट नीड दिस TZD. ओके बेटा, ये डाउट क्लियर हो गया? और डाउट बताओ. सर वो सेकंड ऑब्जर्वेशन में जो कॉस पी कैलकुलेट किया है, उसको मून का सिर्फ लिया है. मतलब कि जो हमने ऊपर जो कैलकुलेट किया था, तो सिर्फ लैटिट्यूड उससे निकाला हमने और उसको यूज कर रहे हैं. तो मतलब यूज तो समझ में आया कि सर यूज कर रहे हैं, तो लेकिन क्यों ऐसा? क्यों है ऐसा? अब बेटा जो ये मून की ऑब्जर्वेशन थी, दिस वाज ए मेरिडियन पैसेज ऑब्जर्वेशन, राइट? यस सर. इन्होंने बोल रखा है मून इज नॉर्थ और साउथ ऑफ अस, राइट? तो हमने इसे सॉल्व किया. हमारे पास यहाँ पे ट्रू ऑल्टीट्यूड आ गया. ओके, हमने यहाँ पे TZD भी निकाल लिया, एंड हमें इस फिगर से हमारा लैटिट्यूड भी मिल गया, राइट?
Yes, sir. हाँ, ये TZD नहीं होना चाहिए, MZD होना चाहिए यहाँ पे. This you are right. This should be Yes, sir, MZD वो because body is confused. on the meridian. This will be the MZD. That is correct. Okay. So हमने MZD और डेक्लिनेशन को कंबाइन करके अपना लैटिट्यूड निकाल लिया. ये मून की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे खत्म हो गई बेटा. ओके. अब जो ये वाला कॉस भी निकाला गया है बेटा, ये वीनस के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि मून ने तो लैटिट्यूड दे दिया. Yes, अब sir. हम वीनस की हेल्प से लॉन्ग बाय क्रोन मेथड लगा के लॉन्जिट्यूड निकाल रहे हैं. ये लॉन्जिट्यूड हमने निकाला तो ऑब्वियसली यहाँ पे वीनस का ही एल्टीट्यूड यूज करेंगे ना. Sir, एक मिनट क्वेश्चन देखो. हाँ, देख लो बेटा, देख लो. मून ने तो हमें लैटिट्यूड दे दिया है. मून जॉब इज डन. सो अब हमें वीनस की जो साइड है उसे सॉल्व करना है एंड दैट वी आर डूइंग विद लॉन्ग बाय क्रोन. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द एल्टीट्यूड ऑफ वीनस. तो क्वेश्चन एक मिनट से क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ. हाँ, टेक योर टाइम, हैव ए लुक एट द क्वेश्चन. मैं दिखा दूं, यहाँ पे ही दिखा दूं. हाँ सर, यहीं पे दिखा दीजिए मुझे, मैं वो ये ग्रुप में अभी दिखा देता हूँ बेटा. ये लो बेटा, लेफ्ट साइड में यू हैव द क्वेश्चन. ये रहा नंबर 13. Yes, sir. क्लियर है बेटा? तो ऐसे में सर विनर के ही मतलब जो फर्स्ट दिया हुआ है उसी का सब कुछ लेके करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो टू साइमल्टेनियस आएगा तो. ओके. अब बेटा जहाँ कहीं भी साइमल्टेनियस दो ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है ना, हमेशा एक ऑब्जर्वेशन मरपास की होगी. ओके ओके सर. जैसे इस केस में मून की ऑब्जर्वेशन जो है इट्स रिटन एजीमुथ 180, सो दिस इज ए मरपास ऑब्जर्वेशन. ओके. सेकंड केस में जो वीनस है नंबर 14 में देखोगे एजीमुथ 180 अगेन मरपास. मरपास की ऑब्जर्वेशन को ऑब्वियसली मरपास मेथड से ही सॉल्व करना है. और जब आपके पास फिक्स लैटिट्यूड आ जाए, मरपास विल गिव यू फिक्स लैटिट्यूड, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन को हम हमेशा लॉन्ग बाय क्रोन से सॉल्व करते हैं. क्यों सॉल्व करते हैं? मैंने एक शीट तुम्हें भेजी है, 2 बार भेजी है, डिटरमाइनिंग मेथड फॉर पीएल. उसका पॉइंट नंबर 3 एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ना, वो तुमने पढ़ा नहीं है. नंबर 3 पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि दूसरी साइड लॉन्ग बाय क्रोन क्यों ली है. ओके सर. ओके ओके सर. ओके, आई विल चेक. ओके. नंबर Thank you, 13 हो गया. इसके बाद और बताओ बेटा, और कोई डाउट्स आ रहे हैं? सर क्वेश्चन नंबर 9 जो किया है सर, क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया था सर. ओके ठीक है बेटा. तुमने क्या मेथड फॉलो किया है बताओ मुझे. सर साइड टाइम का जीएमटी निकाला, फिर उसी टाइम पे मरपास का टाइम निकाला, ड्यूरेशन मिल गया, फिर उसमें से रन लगा के मैंने और लॉन्गिट्यूड निकाला, वो उस हिसाब से किया था सर. एक मिनट रुक जाओ बेटा. आपने मॉर्निंग साइड का जीएमटी निकाला और मेरिडियन पैसेज का एलएमटी एल्मेनेक से निकाला, उस एलएमटी को जीएमटी में कन्वर्ट किया. यस सर. जीएमटी टू जीएमटी से डिफरेंस निकाल लिया, राइट? यस. मुझे ये बताओ बेटा कि एलएमटी को मरपास को जब आपने जीएमटी में कन्वर्ट किया तो लॉन्जिट्यूड कौन सा यूज किया आपने? इट इज द मॉर्निंग लॉन्जिट्यूड और द मरपास लॉन्जिट्यूड? मॉर्निंग का ही है सर. मॉर्निंग का किया ना, वो तो गलत हो जाएगा बेटा क्योंकि ऑब्जर्वर तो चल रहा है. मरपास पे तो उसका लॉन्जिट्यूड कुछ और होगा. हाँ, तो अप्रोक्सीमेट टाइम निकाल के फिर मैंने रन लगाया सर. वो रन के लिए फिर मैंने ऑब्जर्वेशन निकाला.
ओके, तो तुमने अप्रोक्सीमेट टाइम लिया, उसके लिए रन लगाया और मरपास का लॉन्जिट्यूड निकाला, करेक्ट? यस सर, इसी लॉन्जिट्यूड को LIT में यूज किया है, राइट? करेक्ट सर। अब बेटा इसको भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है इसको, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड यू कैन यूज। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, ओके। और बेटा और कोई डाउट इसमें? वेरी गुड, ग्रेट, नो डाउट्स। सो अगर आपने असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं की है तो बेटा इनको पक्का कंप्लीट कर लेना। असाइनमेंट में कोई सवाल मत छोड़ना, ओके? सो डू ऑल द क्वेश्चंस, इट विल प्रिपेयर यू फॉर पार्ट बी ऑफ योर पेपर 4, 5 एंड 6। तीनों क्वेश्चन इसमें कवर अप हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, आई हैव टू take you to some basic concepts like stellar magnitude and twilight। ये दो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा। फिर एक एल्मनैक में एक टेबल है, स्टार टेबल, वो फेमिलराइज कराऊंगा, एंड दैट विल टेक अस टू क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्स सुटेबल फॉर साइट। ओके, सो डू यू वांट टू गो अहेड विद दैट? कॉलेज बाकी है आज के लिए? यस सर। यस करेंगे। नो सर आज तो कल करते हैं सर। हो गया सर। नहीं सर, सर हो गया सर, आज का सर, आज का हो गया। ऑल राइट, हाँ मैं सर, समझ गया तो बेटा, बता दीजिए, तो बता दीजिए। मैं समझ गया बेटा। आज मैं नहीं पिकअप कर रहा हूँ इसे, नेक्स्ट लेक्चर में Thank you, मैं sir, ये thank सारे you. कॉन्सेप्ट पिक करूंगा। मैं पहले पिकअप करूंगा स्टेलर मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद ट्वाइलाइट, फिर स्टार टेबल, ये 3 देखेंगे, और फिर मैं चलूंगा स्टार सूटेबल फॉर साइट क्वेश्चन पे। उसमें 5 टाइप्स हैं, सो वी आर गोइंग टू कवर दोज टाइप्स वन बाय वन। अगला लेक्चर थोड़ा हैवी होगा बेटा, पहले से ही टी कॉफी का कप लेके बैठना। श्योर सर। सर Okay. नोट्स मिल जाएंगे, सर नोट्स पढ़ लेते हैं। ओके सर, ब्लैक कॉफी सब ले लेंगे। हाँ, वो लेके बैठना, एंड दैट विल क्लोज आउट क्वेश्चन नंबर 7, और फिर हम आगे 8 और 9 पे चलेंगे। नाउ Sir, मेरी नेक्स्ट, हाँ बोलो बेटा। सर वो टिपिकल क्वेश्चंस के जो आप बोले थे ना, बाद में दिखाओगे? हाँ, वो मैंने भाई, रखे बाद हुए हैं में बेटा, दिखा देंगे। वो तुम्हें डाउट आएंगे, फिर मैं उनको बताऊंगा, डोंट वरी, रिलैक्स। नहीं सर, वो तो ठीक है, बट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता सर। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट भी दूंगा, सब दूंगा, तुम पहले प्रैक्टिस तो करो। सर क्वेश्चन सेट में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना सर इसमें, जो आप सेट क्वेश्चन सेट दे रहे हैं, तो सेम लाइक। मैं तो बोलूंगा कि सारे हैं। अब ये तुम ट्राई करो, तुमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कवर कर लिया, right? Now you go to past papers and see, once you have done the assignments, go to past papers and see any question paper 4, 5 and 6. Are you able to attempt? तुम्हें आंसर मिल जाएगा बेटा। यस सर। ओके, सर अभी नेक्स्ट क्लास जीसी तो कवर करते हैं सर। सर जीसी के तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन वही सीएल दुबे के बुक से हैं, जो एग्जांपल्स हैं, मैक्सिमम देखा मैंने। बहुत बढ़िया बेटा। सर ये स्टैगर्ड कौन सा क्वेश्चन नंबर में आता है सर? बेटा इट कैन कम इन 5 और 6, किसी में भी आ सकता है। ओके सर। ओके, इंटरचेंजेबल है, दोनों में डाल देते हैं। सर किसी में पीजेएक्स टॉपिक कंप्लीट हो गया क्या? सब बचा हुआ है पीजेएक्स? नहीं बेटा, उस पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है हमने, उस पे न्यूमेरिकल्स अभी करने हैं, आगे आएंगे। ओके सर। Sir, can you, sir, right now, if we are not doing anything, sir, I mean, can you please, sir, explain PZX triangle? That day I was down with the network, so could not get the lecture properly. ओके बेटा, मैं ना, हाँ, अब मैं पूरा तो नहीं अभी एक्सप्लेन करूँगा। मैं तुम्हें ना वो जो डायग्राम है PZX की, उसका एक स्क्रीनशॉट डालता हूँ। ओके, गो थ्रू दैट डायग्राम केयरफुली।
ओके, गो थ्रू दैट डायग्राम केयरफुली एंड यू विल हैव टू टेल मी उसमें कौन कौन सी चीजों में तुम्हें डाउट है. ओके, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा. मुझे डाउट बताओगे देन आई विल टेल यू कि भाई हाँ इस डाउट का ये आंसर है. सर एक और चीज पूछना था सर, पूछूं सर? पूछो बेटा. सर ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम लोग साइड कैलकुलेशन कर रहे हैं ना सर, लॉन्ग बाइक्रोन, इंटरसेप्ट या एक्स मेरिडियन, इसमें सर मतलब फॉर्मूलाज में और प्लस माइनस में थोड़ा सा मतलब इशू हो रहा है. तो अगर कॉस पी मतलब कोसाइन फॉर्मूला लगा के सर उससे निकालें तो वो इजी पड़ रहा है सर, उसमें वैसे कर सकते हैं क्या? जैसे Okay, लॉन्ग बाइक निकालना है तो सीधा कोसाइन फॉर्मूला लगा के पी निकाल दे रहे हैं सर. ओके, होल्ड ऑन बेटा. इसका मतलब ये है कि तुम लॉन्ग बाइक्रोन और इंटरसेप्ट में रैशनल होराइजन डायग्राम पीजेड-एक्स ट्रायंगल बना रहे हो और फिर उसमें कोसाइन फार्मूला लगा रहे हो. करेक्ट सर. हाँ, लैटिट्यूड और डिक्लिनेशन देख के मैं ये बना ले रहा हूँ सर, रैशनल होराइजन का डायग्राम. और उसमें से टाइम थोड़ा कम लगता है सर पीजेड से सॉल्व करने में. सही बोल रहे हैं सर. If you are comfortable doing that, no problem बेटा. You can do it that way. No issues. तुम उसे सॉल्व कर पाओगे. ओके, क्योंकि इसमें सर इंटरसेप्ट में सेम प्लस डिफरेंट माइनस, लॉन्ग बाइक्रोन में सेम माइनस डिफरेंट प्लस, वो कंफ्यूजन है सर, याद नहीं रह रहा. It is okay बेटा. If you are doing it with rational horizon PZX triangle, just make sure कि तुम्हारी PZX triangle गलत ना बने. If that is accurate, then you will get the answer. No problem. You can do it that way also. ओके सर. ओके. ओके बेटा. सो वी ऑलरेडी बोलो. लास्ट टाइम जीसी आया था अक्टूबर 2023 तो उसको एक बार सॉल्व कर दिए. बेटा तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. स्पीक अगेन क्लियरली. सर ये जो लास्ट टाइम अक्टूबर 2023 में जीसी का क्वेश्चन आया है तो उसको सॉल्व करना था. तो उसमें क्या डाउट आ रहा है बेटा? उसमें कुछ डाउट आ रहा है? यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट? हाँ, तो उसको सॉल्व नहीं पड़ा. बेटा वो क्वेश्चन ग्रुप में डाल दो. ठीक है सर, मैं डाल देता हूँ. हाँ, शेयर इट ऑन द ग्रुप. लेट मी हैव ए लुक. और जो डाउट आ रहा है तुम्हें वो भी लिख देना कि सर ये चीज पता नहीं चल रही. लेट्स सी दैट क्वेश्चन. ओके, ग्रेट बेटा. आफ्टर 12th क्लास होगा सर? आफ्टर 12th बेटा हमारा जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से ही क्लासें होंगी. शेड्यूल में कुछ एक स्पेयर लेक्चर्स लिख रखे हैं. इफ रिक्वायर्ड, इफ वी आर नॉट एबल टू कवर द सिलेबस, तो वो स्पेयर लेक्चर्स यूज होंगे. अदरवाइज वंस द सिलेबस इज कवर्ड द क्लासेस विल स्टॉप. सर अगर 24 के बाद डाउट आते हैं तो फिर कैसे करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप इज एक्टिव बेटा. शेयर योर डाउट ओवर द ग्रुप. इफ वी आर एबल टू डू दैट, वेल एंड गुड. अगर जरूरत पड़ेगी, डाउट ऐसा आ गया है कि ग्रुप पे सॉल्व नहीं हो रहा है, देन वी कैन करेक्ट. नो इश्यूज. तो सर मीन अगर 24 दिसंबर बाद कोई डाउट आता है देन वी हैव टू ड्रॉप इन व्हाट्सएप ग्रुप. हाँ, दैट्स राइट बेटा. सर ये ओनली योर असाइनमेंट्स कर लेंगे तो काफी है ना सर एग्जाम्स के लिए? बिल्कुल काफी नहीं है बेटा. ना बिल्कुल काफी नहीं है. मेरी असाइनमेंट करने के बाद जाके पास पेपर्स में टेस्ट करना है. अच्छा, ओके. हाँ, टेस्ट इट आउट इन द पास्ट पेपर्स, वो एनफ है. अच्छा, ओके. मैं तो यही फॉर हाउ मेनी इयर्स सर? 2 साल के बेटा. आई वुड से कीप अ टारगेट फॉर लास्ट 3 इयर्स. 21, 22 और 23, ये 3 साल का टारगेट रखो. अगर इतने कर पाओगे देन यू विल बी एट ए रीजनेबल लेवल टू अटेम्प्ट द पेपर. शुड नॉट बी एनी इशू इन अटेम्प्टिंग. इतने तो हो जाएंगे सर. 3 साल के रखो बेटा. Sir, I have one doubt. I have sent in the group that SMT median passage from question bank. Just tell me how to approach this question. बेटा नंबर 9 की बात कर रहे हो जिसमें सन और ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं? No, sir. I have sent one question that is question number 6. I have sent you from the question bank. It's okay. Let me have a look.
Beta, this is exactly matching with question number 9 of our assignment. Exactly same question with different values, beta. Correct, sir. It's question number 9. Same method is to be used. Exactly same method, same format. Values change करके उसको solve करते जाओ, आंसर आ जाएगा. Okay, sir. I'll try and. इस पे हमने आज आधा घंटा spend किया है, so Yes, sir. try doing that. Yes, sir. Right, you should be able to solve it. Okay, beta. All right. So we close it out for today, and I'll see you in the next class. Be ready with question number 7. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, beta. All right. See you. Sir, please, Bye bye. sir, please share my screenshot. I have one doubt for question. I'll do. Nelson, doubt. Yes, sir. बोलो क्वेश्चन बेटा. नंबर 6 बोल में दो. बीच में आपने जीएमटी से आपने एलएमटी निकाला है ना सर, उसका यूज क्या था मुझे समझ में नहीं आया सर, वो सॉल्यूशन मैंने देखा. नंबर 6 में है. आपने जीएमटी से एलएमटी टाइम निकाला और ब्रैकेट में आपने एएम लिखा हुआ है, तो उस वो किस लिए निकाला है वो मुझे समझ में आया. फ्रॉम एलएमटी टू जीएमटी सर निकाले थे और जीएचए. जीएमटी से एलएमटी निकाला. वो शिफ्ट टाइम दे रखा था ना 0850 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसलिए एलएमटी टू जीएमटी निकालते जीएचए की. क्वेश्चन 6. ओके, क्वेश्चन 6. This may be extra calculation, beta. Okay, sir. Okay. There may be extra calculation. That's fine. Okay. AM. Okay. AM. Yeah, that's right. Is maybe extra calculation not required क्योंकि AM तो दे ही रखा है, so you will be able to calculate P using that AM indication. Not required. Okay, sir. Understood. Okay. Okay, beta. All right. Okay, not required. That's extra calculation. Okay, all right, okay, beta. See you then. Bye bye. See you, Bye-bye, sir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, sir. Bye sir. फॉर मेरे में भाई चार्ट वर्क के जो क्वेश्चन आज जो भाई चार्ट वर्क के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिला किसी को? भाई सेकंड का बता दो यार, जिसमें हाँ मिल गया. थर्ड का कौन सा असाइनमेंट वाला? जो थर्ड असाइनमेंट था उसका बोल रहे हो? हाँ हाँ हो गया. क्या आंसर क्या है? अरे आंसर तो कॉपी में है ना, आंसर बाहर है भाई, भेजता हूँ तेरे को. भाई सेकंड वाले में चार्ट वर्क के जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें रेंज कौन सी लेनी है उसका क्या सर बोल रहे थे? 10 नॉटिकल माइल. आज मैंने सर से बात की थी, वही कह रहे हो ना, रेड व्हाइट वाला कह रहे हो ना? हाँ जिसमें 2 रेंज. तो आज मैंने सर से बात की थी, इंस्टीट्यूट गया था, तो सर ने बताया वी हैव टू टेक द रेंज in which the course is falling. Like जो हमें राइट हेड वाला कोर्स है ना, लाइट राइट हेड वाला, अगर वो रेड सेक्टर में आ रही है तो हमें रेड सेक्टर की वो लेनी है रेंज. अगर व्हाइट सेक्टर में आ रही है तो व्हाइट सेक्टर की रेंज लेनी है. इट्स नॉट लाइक कि हमें मैक्सिमम रेंज लेनी है. अरे बट उसमें तो सेक्टर लाइक था.